लेट अस बी वेरी रियल फॉर अ सेकेंड। हम जितना भी प्रोडक्टिव होने की कोशिश क्यों ना करें, हम जितना भी दी इट गर्ल लाइफ जीने की कोशिश क्यों ना करें, देयर आर टाइम्स इन आवर लाइफ व्हेन वी फील सो बर्न आउट, सो इरिटेटेड एट लाइफ कि सब मेरे ऊपर एक वक्त पे क्यों आ रहा है। आई डोंट वांट टू गेट आउट ऑफ बेड, आई डोंट वांट टू गो टू स्कूल, आई डोंट वांट टू डू दिस, आई डोंट वांट टू डू दैट, पर मेरे को करना पड़ रहा है। आई एम सो फेड अप, आई डोंट वांट टू लिव लाइफ। आई एम श्योर ये सारी बातें आपने कभी ना कभी खुद को बोली होगी एंड यू जस्ट डोंट वांट टू गेट थ्रू द डे। बट ऐसे जब ऐसा वक्त आता है एंड यू फाइंड योर सेल्फ टेलिंग दीज थिंग्स टू योर सेल्फ, know that it is time that you take your power back and get your life back on track. And to learn how to do it, make sure आप वीडियो एंड तक ज़रूर देखो. Let's start. Chapter 1, Mornings. So हम baby steps से शुरू करेंगे and we are going to take actions that are within our control and not focus on unnecessary bullshit, okay? Usually ऐसे time पे when we are feeling sluggish, when we feel burnt out, we just do not want to get out of bed. Even if we have completed our sleep, we have slept for like 8 hours, 10 hours, we still don't want to get out of bed. And we naturally pick up our phones. That has become the new human tendency. But here's the twist. हम phones उठाएंगे पर हम unnecessary फालतू content नहीं देखेंगे जो scroll करते करते हमारे YouTube या Insta Reels पे आ जाते हैं। हम मोटिवेशनल और स्पिरिचुअल कंटेंट देखेंगे। स्पिरिचुअल कंटेंट बिकॉज इट गिव्स यू अ सेंस ऑफ होप एंड रीअश्योरेंस दैट यू आर नॉट अलोन इन दिस। यू इवन इफ यू कांट शेयर योर प्रॉब्लम्स विद समबडी, यू हैव गॉट टू टॉक टू। And motivational content to remind you who the hell you are, why you have started improving yourself, and why it is important for you to achieve your goals, how many people are relying on you, your future self is relying on you, and to remind yourself of that, you're gonna watch spiritual and motivational content on the phone. Now I have scrolled for like an hour and now I'm getting out of bed. But here's the catch. I do not blame myself that I have stayed in bed and I have scrolled for an hour because I know that उस moment पे that was the best I could do. अगर मैं उठ भी जाती, I wouldn't have the motivation to even go and brush my teeth. The next thing is we're gonna go out and we're gonna get some fresh air. फ्रेश एयर इज़ सो इम्पॉर्टेंट। हम हमेशा हसल में फंसे रहते हैं, उठते ही कभी काम पे चले जाते हैं, कभी स्कूल पे चले जाते हैं, कभी पढ़ाई करने लग जाते हैं। फ्रेश एयर का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो चुका है। ठीक है, हमारे घर पे बैल्कनी नहीं है, घर दरवाजे खिड़कियाँ तो है ना हमारे घर में, कभी कभी उनको भी खोल लिया करिए, कभी कभी उनसे भी हवा ले लिया करिए, क्योंकि नेचर इज़ द बेस्ट हीलर एंड द बेस्ट टीचर एंड दैट्स द बिगेस्ट थिंग दैट आई हैव लर्नड। अब हम उठ चुके हैं, हमने हवा भी खा ली है, अब हम पानी पियेंगे। एंड इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू हाइड्रेट योर सेल्फ इन द मॉर्निंग्स। आई हैव a friend, she doesn't hydrate herself in the morning and she gets pissed off so bad when her mom makes her drink water, but is so freaking important. Just goddamn hydrate yourself. Warm water, lukewarm water, ठंडा पानी फर्क नहीं पड़ता, just go ahead and hydrate yourself. Here's the important thing. अब हम अपने कानों में लगाएंगे हेडफोन्स और हम अपने हेडफोन्स को कनेक्ट करेंगे ब्लूटूथ से अपने फ़ोन में और हम उसमें लगाएंगे भगवान के गाने, क्योंकि ट्रस्ट मी, when you feel like there is no hope out there in the world, when you feel helpless, when you feel like life में सब अपने आप ही हो रहा है, I do not have control over my own life, that's when भगवान के गाने आपको ऐसा hope देते हैं ना, they give you so much motivation that you are not alone in this world, you do not have to go through this alone, you have company, you always have company and you can always talk it out with someone and that is God. Now, if possible, हम 5 या 10 मिनट का योगा करेंगे और we'll just simply move our body. But अगर मन नहीं है या फिर समय नहीं है, it's totally all right. We'll directly skip to breakfast. Now, breakfast, we all know breakfast is the most important meal of our day. So first things first, do not freaking skip it. And second things second, look after what you're putting in your body. Look at what you put in your body. Are you putting your body with junk food? पिछले दिन का पिज़्ज़ा, पिछले दिन का KFC, oh hell no. Just put your body with vegetables, रोटी, दूध, ये सब खाओ ब्रेकफास्ट में, ना कि processed food. Even I have seen people drink juice in breakfast, जो कि I don't think it's healthy at all. क्योंकि हम generally I don't think fresh juice बनता है घरों में, real ही खाते हैं। मैं भी मूवीज़ में देख के रियल पीने का ट्राई कर रही थी ब्रेकफास्ट में, बट व्हेन आई लुक्ड एट द contents that are ingredients that are added in the juice, I just flipped out. I was like, no way, I'm nowhere in hell I'm putting that in my body anymore. And the last thing for the morning is हम journal लिखेंगे as to where I went wrong. I know थोड़ा negative sound करता है, but no, we are gonna write journal कि where I went wrong, what are the areas in my life where I need to work on more.
वाई एम आई फीलिंग दिस वे, क्या वजह है, एग्जैक्टली प्रॉब्लम है क्या मेरी. एंड व्हेन वी राइट दीज थिंग्स डाउन ना, ऑटोमेटिकली आपको एक क्लैरिटी मिल जाती है कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है. चैप्टर 2, इट्स द मिड डे. नाउ मिड डे जब आता है, इट इज़ ऑफन द टाइम वेयर आई फील द मोस्ट स्लगिश थ्रू आउट द डे. मतलब सारे दिन में ये मिड डे का समय होता है when I feel the most sluggish. I don't want to do anything. I just want to sit back and relax and just watch movies after movies and series after series. But हमें वो नहीं करना है. ऐसे टाइम पे जब when we feel like this, immediately go take a shower. Just run and go take a shower. क्योंकि what we do is we create a break between this perfect morning that we had and the sluggish afternoon that we are going to have. हम उसके बीच में एक ऐसा बैरियर खड़ा कर देते हैं by taking a shower. So just go and take a shower, and what I like to do is, as the water flows out through my body, what I imagine is stagnant old negative energy is flowing out of my body and I am getting cleansed by the water. And once I come out of the shower, trust me, I feel cleansed. I feel so fresh. अब हम एक लिस्ट बनाएंगे जिसमें हम अपने सारे अनफिनिश्ड, पेंडिंग, वो सब टास्क लिखेंगे, राइट. ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टेक्निकली देखा जाए तो हम एक लाइफ का नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, ठीक है. पिछला चैप्टर फिनिश करे बिना हम नया चैप्टर कैसे शुरू कर सकते हैं. हाउ इज़ इट गोना बी अ सक्सेस इफ वी डू नॉट नो व्हाट वी हैव डन और लर्नड इन आवर previous chapter, right? So we are going to have to finish that first before we hop on to our next chapter. मेरे unfinished tasks में I generally have homeworks, assignments, projects, notes वगैरह वगैरह. तो इनमें से जो काम सबसे easiest है मेरे लिए वो probably homework होता है. और homework वो काम सबसे पहले करूँगी मैं, ताकि इसके बाद मुझे एक healthy dopamine hit मिले कि oh my god, मैंने ये काम पूरा कर लिया. सो probably I will be able to do the rest of the work as well. And it's okay कि आप काम को तोड़ के करो. ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने 5 काम लिखे हैं तो आपको 5 काम मिड डे में ही ख़त्म करने हैं. आप एक भी कर रहे हो ना, सो इट्स रियली प्रोडक्टिव. क्योंकि ऐसे मेंटालिटी में भी जब आप स्टार्ट करते हो अपने अनफिनिश्ड टास्क को पूरा करना, दैट्स रिमार्केबल. मिड डे में भी हमारा लंच आ जाता है. सो आई एम नॉट गोना टॉक अबाउट न्यूट्रिशन अगैन, बिकॉज आई एम अगैन टेलिंग यू, look what you put in your body, because it really affects how your mind feels. Lunch के बाद I do prefer to take a 2-hour nap or I just simply watch a movie. Basically the purpose is to take rest, क्योंकि सारी मॉर्निंग इतना कुछ करने के बाद, सारी मॉर्निंग खुद मतलब अपने माइंड को झेलने के बाद, थोड़ा काम करने के बाद, now I need a bit of rest, and that's why I take a nap or I watch a movie that is comedy or motivational. कोई सैड रोम कॉम लेके मत बैठ जाना. दैट्स जस्ट द वर्स्ट थिंग यू कैन डू टू जस्ट मोटिवेट योर विक्टिम माइंडसेट. चैप्टर 3, evening/night. इस टाइम पे यू हैव नाउ probably finished your movie or you have probably woken up from your nap and hopefully you feel totally rejuvenated now. अब हम क्या करेंगे कि हम अपने पेंडिंग टास्क को पूरा करेंगे. आई अर्लियर टॉक्ड अबाउट दिस, हाउ आई सिट डाउन एट माई डेस्क एट 8 PM शार्प टू स्टडी, एंड दैट इज़ जस्ट माई हैबिट. तो मैं नेचुरली बैठ भी चाहती हूँ 8 बजे को, बट ऐसे टाइम्स पे व्हेन आई जस्ट डू नॉट वांट टू स्टडी, आई जस्ट डू नॉट वांट टू कंप्लीट एनीथिंग, आई टेल माई सेल्फ इज, एक काम, कोई भी एक काम, अनफिनिश्ड काम तुम कर लो, उसके बाद यू आर फ्री. तुमको जो करना है तुम करो, बस एक अनफिनिश्ड टास्क उससे पहले तुमको ख़त्म करना पड़ेगा. एंड आई चूज़ दैट टास्क, फॉर एग्जाम्पल अ पेंडिंग लेक्चर. सो व्हाट आई टेल माई सेल्फ इज, ये लेक्चर ख़त्म करो तुम. आधा लेक्चर तुमने पहले देख कर रखा है, आधा लेक्चर तुम अब ख़त्म करो, उसके बाद तुमको जो करना है तुम करो. सो आई सेट डाउन फॉर लाइक एन आवर एंड आई फिनिश दैट लेक्चर. बट ज़रूरी नहीं है कि हम एक घंटा पूरा 8 से 9 एकदम पूरा फ्लो में बैठे, क्योंकि पर्सनली मेरे से तो ऐसा बैठा नहीं जाता. I study for like 15 minutes, take again some break, again 15 minutes, again take some break. मेरे ब्रेक का टाइम मेरे पढ़ाई के टाइम से ज़्यादा होता है ऐसे टाइम्स पे. बट अगेन आई डू नॉट ब्लेम माई सेल्फ, क्योंकि आई अंडरस्टैंड व्हाट आई एम गोइंग थ्रू एंड आई सपोर्ट माई सेल्फ थ्रू आउट ऑल ऑफ दिस सिचुएशन. और एक वो काम ख़त्म होने के बाद आई टेल माई सेल्फ कि एक और काम कर लो, बस एक और काम. ऐसे करते करते मेरे से जितना हो पाता है मैं कंप्लीट करती हूँ. बट यहाँ पे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको अगर 5 काम है पेंडिंग टास्क में तो आपको 5 काम कंप्लीट करने हैं. ऐसा नहीं है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है. मोस्ट केसेस में ऐसा पॉसिबल नहीं होता.
तो अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, प्लीज़ डोंट बीट योर सेल्फ अप फॉर इट. इट्स टोटली ओके. इट्स सो रिमार्केबल दैट यू आर स्टिल वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ. इट्स सो रिमार्केबल दैट यू हैव taken the first step towards taking your power back and improving your life. Hell, I'm so damn proud of you. अब रात हो रही है, सोने का टाइम आ रहा है, तो slowly we are gonna wind down. So हम रिलैक्स करेंगे, हम किताबें बंद करेंगे, हम बैठेंगे. तो ऐसे टाइम पे ना अकेले रहना मुझे पर्सनली बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बिकॉज हर तरह के नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं माइंड में. सो अकेले तो बिल्कुल मत रहिएगा. What I do is I spend some time with my family. I talk with them, और जनरली मेरे पापा मूवी देख रहे होते हैं, फिर टीवी देख रहे होते हैं, सो आई जस्ट सिट डाउन विथ हिम एंड वॉच द मूवी. अगर वो क्रिकेट देख रहे होते हैं और क्रिकेट का सच में मुझे कुछ समझ आता नहीं है, बट आई स्टिल ट्राई टू आस्क हिम जेन्युइन क्वेश्चंस एंड अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है, ताकि एटलीस्ट मेरा माइंड नेगेटिविटी में तो ना घूमे, उस स्पाइरल में ना घुसे मेरा माइंड. उसको डिस्ट्रैक्टेड रखने के लिए आई फोकस ऑन समथिंग दैट इज सॉर्ट ऑफ अ कम्युनिटी एक्टिविटी, जहाँ पे अलग लोग भी इन्वॉल्व हो. एंड मेरे ज़्यादा फ्रेंड्स भी नहीं है दैट आई कैन कॉल देम एंड आस्क. सो व्हाट आई हैव इज़ माई फैमिली, एंड आई डू सिट डाउन एंड टॉक विद देम. आई वॉच मूवीज़ विद देम, और आई जस्ट सिंपली हग देम एंड स्लीप विद देम. क्योंकि ऐसे टाइम पे ना फैमिली का जेन्युइन सपोर्ट एंड जस्ट उनके पास रहना, इट्स सो कम्फर्टिंग. नाउ वी हैव हैड आवर डिनर, हमने ब्रश भी कर लिया है, एंड नाउ वी आर गोना सिट डाउन ऑन आवर बेड, take out our journal, and one final time we're gonna write the following thing. I'm so proud of you. You did so good today. And now you're gonna write all of your thoughts that you have had throughout the day. Negative, positive, whatever you have in your mind. And finally we're gonna end the journal by 5 things that we are grateful for. And make sure कि ये चीज़ें ना बहुत बड़ी ना हो. एंड आई हार्डली बिलीव कि ऐसे टाइम पे जब हमारा मेंटालिटी सही जगह पे नहीं होता, वी विल हैव समथिंग बिग टू राइट अबाउट एनी वे. तो छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि आज का वेदर कितना अच्छा था, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर टुडेज वेदर, और आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई टुक द फर्स्ट बेबी स्टेप टूवर्ड्स टेकिंग माई पावर बैक. आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई वॉच्ड अ मोटिवेशनल वीडियो टुडे. आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई completed half the task that I had pending today. I am so grateful for today. And this is just to remind yourself कि even if life में काफ़ी चीज़ें सही नहीं जा रही है at the moment, काफ़ी चीज़ें सही जा भी रही है, and at the end of the day life मेरी है, तो I can change the direction, I can take the wheel at any time I want, I can change the direction of my life at any time I want. ज़रूरी नहीं है कि चीज़ें जैसी चल रही है मैं उनको वैसे चलने दूँ. Even by taking baby steps, I am taking steps, I'm working towards improving my life, and that is what matters. It reminds us कि life में peace and joy छोटी छोटी चीज़ों से आती है, ना कि बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों से. And all of that I'm facing right now is just temporary, and the sun will shine at the end of the tunnel. Thank you so much if you're still there and you watched the video till the end. It matters so damn much to me. I'm making this video after so long because I have had my exams recently, and frankly exams ठीक ठाक ही थे. Geography काफ़ी सही था and बाकी exams ठीक ठाक ही थे. But yeah, I'm proud of myself that I am able to score pretty decent marks. I mean 40 में exams होते हैं and सारे एग्ज़ाम्स में मेरे मार्क्स 35 के अबव ही है. सो आई एम प्रिटी ग्रेटफुल फॉर दैट एक्चुअली. सो या काफ़ी पर्सनल रैंट हो गया. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.